Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to talk about types of arches. In the last class, as you must be knowing, we had covered what do we mean by arches and what are the various components and importances of arches. So as far as types of arches are concerned, there are two bases or the types of arches can be derived on the basis of two bases. The first one is shape. So now we are going to classify arches on the basis of their shape. That is the first classification of arches. So this one is a flat arch. Now the flat arch, like you can see very easily here, that the flat arch here is actually flat. So it is not curved, it is flat. So that's how literally this arch is called flat arch. Technically we call it flat because the intradose is flat. What is intradose? We had covered it in the last class. The inside surface of the arch, we call it intradose. And it acts as a base of an equilateral triangle which is formed by the horizontal angle of 600 by skew back. So basically what do we call skew back? This is a skew back. Alright, and the arch is so that it forms an angle of 60 degrees. So this is what we call a flat arch. In a flat arch, the extradose is also horizontal and flat. So what do we call an extradose? An extradose is the outer edge of the arch. So this is what we call an extradose. So extradose is also flat, intradose is also flat. They make an angle of 60 degrees with the skew backs and they are not used for heavier surfaces. यानी ये arches वहाँ नहीं बनती हैं जहाँ ऊपर बहुत सारी मंजिल हो, stories हो, heavy structure बना हुआ हो. साथ ही they are most suitable for span of 1.5 meters. What is a span? We had covered it in the last class again. This is what we call a span. यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, जो आर्च की चौड़ाई है, उसे हम span बोलते हैं. And for a flat arch, the span should not exceed 1.5 meters. So this is what we understand by a flat arch. Next one is the segmental arch. This is again a very basic type of arch. Here we need to know what is the springing line. So basically the arch, the line where the arch ends, that is this line. This line is called the springing line, and every arch is made up of a circular structure apart from the flat arch. But in case of a segmental arch, it is a circular structure. So if something is circular, it tends to have a center. इसका कोई center होगा. तो अब अगर आप एक सर्कल मानते हैं, एक सर्कल का हिस्सा मानते हैं और इमेजिन करें कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए, इमेजिन करें तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो कहीं यहाँ होगा. यहाँ पर हम सेगमेंटल आर्च को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो सेंटर ऑफ अ सेगमेंटल आर्च है दैट लाइज बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन. यानी एक सेगमेंटल आर्च का कर्व इस तरीके से होता है कि अगर उसको एक सर्कल के रूप में इमेजिन किया जाए तो उसका जो सेंटर होगा वो स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे पाया जाएगा. इस तरीके के आर्च को हम सेगमेंटल आर्च कहते हैं. सेकंड एस्पेक्ट ऑफ अ सेगमेंटल आर्च इज कि जो थ्रस्ट है, यानी ये जो आर्च का जो फोर्स नीचे की ओर देने की कोशिश करेगी, वो फोर्स जो है वो फोर्स इंक्लाइंड तरीके से लगेगा. ये आर्च इस तरीके से नीचे फोर्स
नहीं डालेगी, इस तरीके से नीचे फोर्स नहीं डालेगी। इसका जो फोर्स है, जो दबाव है, वो इंक्लाइंड होगा। ये क्योंकि यहाँ आर्च खत्म हो रही है, इस एंगल पे खत्म हो रही है, इसका फोर्स इंक्लाइंड तरीके से अबटमेंट के ऊपर लगेगा। अबटमेंट क्या होता है? वी हैड कवर्ड अगेन दिस इन द क्लास, लास्ट क्लास। अबटमेंट बेसिकली जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसे हम अबटमेंट कहते हैं। वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि आर्च को सपोर्ट देगा, quite literally. So this here is what we call an abutment. यानी जो आर्च है वो इंक्लाइंड एंगल पे अबटमेंट के ऊपर फोर्स डालेगी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। सेगमेंटल आर्च का सेंटर जो है वो स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे होगा। स्प्रिंगिंग लाइन से हम समझते हैं ये लाइन। दूसरा, जो फोर्स है वो इंक्लाइंड वे में अबटमेंट के ऊपर आएगा। इन आर्चेस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्चेस माना जाता है। However, the rise must be minimum of 1/8 of the span's width to prevent failure. यानी what do we call a rise? स्प्रिंगिंग लाइन से आर्च कितनी ऊपर है उसको हम राइज बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको हम राइज बोलते हैं। जो राइज है वो स्पैन का कम से कम 1/8 होना चाहिए। उससे अगर कम हुआ, उससे अगर ये सेगमेंटल आर्च और ज्यादा फ्लैट होती है तो ये सेगमेंटल आर्च फेल हो सकती है। सो द राइज विच इज स्प्रिंगिंग लाइन से आर्च कितनी ऊपर है फ्रॉम द सेंटर, उसको हम राइज कहेंगे। द राइज शुड बी 1/8 ऑफ द स्पैन। This is how you calculate the segmental arch ka rise. Moving on to the next one, that is the semicircular arch. This is very literally a semicircle because the shape of the arch looks like a semicircle. This is the clear semicircle. So if it is a semicircle and we call this to be the springing line, and because it is a semicircle, that is the right circle, then the center of the circle lies on the springing line. That's what we mean by the springing line center. Another important thing is that here the skew back, again the thrust from the skew back is not inclined, it is transferred to this abutment in a perfectly vertical direction. जो force है, in fact the force should be drawn like this. The force of the arch is perfectly vertical on the abutment. So these are the two basic characteristics of semicircular arch. Number one is the center of the arch lies on the springing line and the force of the arch is transferred onto the abutment in a perfectly vertical direction, and the third one is skew back is horizontal. The skew back is horizontal. It is not inclined, it is not vertical, it is horizontal. Moving on to another interesting type of arch which is the horseshoe arch. बिल्कुल घोड़े के नाल की तरह इसकी शेप होती है और ये जनरली बहुत सुंदर आर्किटेक्चरल प्रोविजंस के लिए बनाया जाता है। इसके पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वाइट विजिबल दैट ये हॉर्स शू की शेप में है। सेकेंडली, एक सेमी सर्कल आर्च जो होगी वो इस तरीके से होगी। एक हॉर्स शू आर्च जो होगी वो उसका जो घेराव होगा, द कर्व ऑफ द हॉर्स शू आर्च इज मोर। ये जो घेराव है ये एक सेमी सर्कल आर्च की तुलना में हॉर्सशू आर्च का ज्यादा होगा। सो दीज आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ horseshoe arch, and it is made to create more interest, grasp attention and bring beauty to the structure. The pointed arch, the other name of this is the Gothic arch. In this type
दो आर्क जो हैं वो सेंटर पे, वो जो सर्कल पे मीट करती हैं एपिक्स पे, तो ये एक बेसिकली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है। इक्विलेटरल की तीनों साइड्स जो हैं वो सेम साइज की होती हैं। आइसोसेलेस में दो साइड्स जो होती हैं वो सेम साइज की होती हैं। सो हियर बेसिकली देयर आर टू आर्क्स। दो आर्क्स हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल आर्क होती तो ये इस तरीके से रन कर जाती। हियर देयर इज अ ब्रेक, सो यहाँ पे एक आर्क ऐसे चल रही है और दूसरी आर्क ऐसे चल रही है। So there are two arcs which meet at the center, creating a triangular shape which can be an equilateral triangle or an isosceles triangle. So we call it the pointed arch or the Gothic arch. Moving on to the Venetian arch, it is just like the pointed arch, but the crown is deeper than the springings and इसके 4 सेंटर होते हैं. Why do we call it something with 4 centers? Because हमने कहा arc के अंदर सर्कुलर शेप्स पाई जाती हैं. तो एक अगर वेनेशियन आर्च इस तरीके से बन रही है, हियर देयर इज अ ब्रेक, एक सर्कल आपका यहाँ बन सकता है, दूसरा सर्कल यहाँ बन सकता है, तीसरा सर्कल यहाँ और चौथा सर्कल इस आर्च. इन शेप्स को अगर हम सर्कल्स के हिस्सों में बांटें तो 4 सर्कल बन सकते हैं और इसीलिए इस आर्च के 4 सेंटर होंगे और चारों सेंटर हमारी स्प्रिंगिंग लाइन पर ही आएंगे. सो वेनेशियन आर्च जो है, पहली बात जो हमारी गॉथिक आर्च थी वो ज्यादा एलोंगेटेड थी. जो वेनेशियन आर्च है वो ज्यादा, जो उसका क्राउन थोड़ा ज्यादा डेप्थ लिया हुआ है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वेनेशियन आर्च. नाउ वी हैव द फ्लोरेंटाइन आर्च. फ्लोरेंटाइन आर्च का एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका जो इंट्राडोस है वो होता है सेमी सर्क्यूलर. द इंट्राडोस इज सेमी सर्क्यूलर. ओके, इट इज अ परफेक्ट सेमी सर्कल, whereas the extradose is like a Venetian arch, बीच में ब्रेक और आपका ये आर्चेस का समागम होता है. So the intradose, that is the interior edge or the interior surface of the arch, is like a perfect semicircle, and the extradose is similar to the Venetian arch. Now we'll talk about the types of arches on the basis of material. कि अलग अलग materials का उपयोग करके, चाहे वो bricks हो, concrete हो, पत्थर हो, उनका उपयोग करके क्या types of arches बनाई जा सकती हैं. So the first one is a rubble arch. By rubble हमारा मतलब होता है कि जो कंस्ट्रक्शन आइटम का वेस्ट जो बच जाता है, टूटे फूटे पत्थर, कंक्रीट का हिस्सा, तो जो भी वेस्ट आइटम जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में बच जाते हैं, जिसे हम रबल बोलते हैं, जो इंफीरियर होते हैं इन देयर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, उनके उपयोग से जो छोटी मोटी आर्चेस बनाई जाती थी उन्हें हम रबल आर्च बोलते थे. ये इसका जो स्पैन है वो 1 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता. जो स्पैन है दैट इज नॉट मोर देन 1 मीटर. सो ये छोटी आर्चेस होती हैं. अगर ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा फैली हुई आर्चेस आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी. सो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वीकर इंफीरियर मटेरियल, सो दे आर स्मॉलर इन शेप. द आर्चेस आर स्मॉलर इन शेप एंड रफली शेप्ड होती है. कोई बहुत अच्छी फिनिशिंग इस रबल आर्च में नहीं पाई जाती और थोड़ा बहुत सीमेंट मोर्टर का उपयोग करके मसाला लगा के इसको फिक्स करने की कोशिश की जाती है. ज़्यादा वर्कमैनशिप इसमें डिमांडेड नहीं होती. देन वी हैव द एशलर आर्च. एशलर आर्च बेसिकली ऐसे स्टोन्स से बनती है जिनको जो प्री कट होते हैं वेज शेप्ड, जो हमने वुस्वा के नाम से जाना था. कि अगर कोई आर्च हम बनाते हैं और उसके अंदर जो वेज शेप्ड, मतलब पीछे से चौड़े आगे से छोटे, उनको हम कहते हैं वेजेस. और जो वेज शेप्ड पत्थर हैं उनको हम कहते हैं इन एन आर्च में इन वेज शेप्ड पत्थरों को हम कहते हैं वुस्वा. राइट.
जहां वुस्वा पत्थर से बने हों और प्री कास्ट हो, मतलब पहले से ही बने हुए हों, और उनको फिर बीच में सीमेंट मोर्टर को भर भर के और फिक्स किया जाए और आर्च बनाई जाए, उनको हम कहते हैं एशलर आर्च। ये नॉर्मली फ्लैट या सेगमेंटल आर्चेस को बनाने में काम आती हैं। फ्लैट और सेगमेंटल आर्च का सबसे बड़ा जो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, हाउ द स्क्यू बैक इज एंगुलर, the force that the thrust upon the abutment is inclined and the curve is quite flat. So ashlar stones जो है वो flat या segmental arches बनाने में काम आती हैं। ये अच्छे से कटे हुए proper shaped वुस्वा wedge shaped में stones होते हैं जिनको सीमेंट मोर्टर की सहायता से फिक्स करके आर्च का शेप दिया जाता है। Then we have the rough brick arch. Basically bricks की बहुत सारे प्रकार, ब्रिक्स से बहुत सारे प्रकार के आर्चेस बनाए जाते हैं। इसमें जो पहला टाइप है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिक आर्चेस, जिसमें तो पहला टाइप है रफ ब्रिक आर्च। ये ऑर्डिनरी ब्रिक्स से बनाए जाते हैं जिनको, जहां हम एशलर आर्च में देख रहे थे कि उनको वेज शेप में कट करके और फिर बीच में सीमेंट लगा के और उसको एक क्लीन शेप दिया जाता है। इन केस ऑफ अ रफ ब्रिक आर्च, ब्रिक्स का कोई वेज शेप्ड शेपिंग नहीं करी जाती है वेज के फॉर्म में। वो जिस भी शेप में है, एज विजिबल इन, क्वाइट इजीली विजिबल इन द पिक्चर, वो जिस भी शेप में है उनके बीच में ही सीमेंट और मोर्टर घुसा घुसा के उनको एक शेप दिया जाता है और आर्च की शेप बना दी जाती है। तो इसलिए इन्हें रफ ब्रिक आर्च कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती हैं और जो नीचे से इंट्राडोज कम और ज़्यादा एक्स्ट्राडोज, ये जो एज है, ये जो साइज है बढ़ाने में सीमेंट मोर्टार का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ब्रिक्स जो हैं जब लेआउट करी जाती हैं तब वो दोनों ही केसेस में या ऊपर और नीचे दोनों सिमिलर शेप में होती हैं। तो अगर इन्हें आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं होंगी, बीच में जगह भरने के लिए आप सीमेंट मोर्टार को फिल कर देते हैं, इसलिए इन्हें रफ ब्रिक आर्च कहा जाता है। बहुत अच्छे अगर एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क है जिसमें आपने ऊपर कोई प्लास्टर नहीं किया है तो हम रेकमेंड नहीं करते हैं रफ ब्रिक आर्च, बिकॉज दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट। बट अगर आप उसे किसी प्लास्टर से, किसी सरफेशियल एलिमेंट से, ट्रीटमेंट से ढक रहे हैं तो फिर रफ ब्रिक आर्चेस भी एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। देन वी हैव द एक्स्ड ब्रिक आर्च। ये सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिक आर्चेस हैं जिसमें ब्रिक्स को कोशिश की जाती है वेज शेप में लाने की, बट बहुत सफाई से इन ब्रिक्स को शेप नहीं दिया जाता है। एक ब्रिक एक्स की मदद से इसे वेज शेप में लाने की कोशिश की जाती है, तो इनकी जो शेप है वो बहुत रफ होती है। साइजिंग और शेपिंग जो है वो बहुत रफ होती है, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं मानी जाती, बट दे आर कंसिडर्ड कंसिडरेबली और कंपैरेटिवली बेटर देन द रफ ब्रिक आर्चेस। एंड द पर्पस मेड ब्रिक आर्च, जो थर्ड टाइप ऑफ ब्रिक आर्च है, दीज आर प्री मैन्युफैक्चर्ड वुस्वा शेप्ड ब्रिक्स, यानी इन ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग ही आर्च के लिए किया गया है, वेज शेप के फॉर्म में ही किया गया है, और ये बहुत ही सुंदर क्लीन प्रिसाइज आर्चेस बना पाती हैं। सो दीज आर द बेस्ट टाइप ऑफ ब्रिक आर्चेस दैट वी हैव, व्हिच आर मेड बाय प्री मैन्युफैक्चर्ड wedge shaped bricks. As far as concrete arches are concerned, there are a couple of types of concrete arch. पहला होता है precast concrete block arch, यानी यहाँ जो वुस्वा हैं वो प्रीकास्टेड हैं, जो कंक्रीट बनी हैं, उस कंक्रीट के जो ब्लॉक बने हैं वो पहले से ही वेज की शेप में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं, लाइक द पर्पस मेड ब्रिक आर्चेस, जहाँ ब्रिक्स को वुस्वा की शेप में ही मैन्युफैक्चर किया है। नॉर्मली हम देखते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स इस तरीके के होते हैं, बट जो प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक होते हैं आर्चेस बनाने के, वो वुस्वा शेप में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इनके लिए स्पेशल मोल्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं एंड ये बहुत खूबसूरत अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये प्रीकास्टेड होते हैं तो इनको बाद में शेप नहीं देना पड़ता, कोई रफनेस नहीं होती, प्रिसीजन होता है और एक क्लीन लुक इससे हम अचीव करते हैं।
कंक्रीट ब्लॉक में मोनोलिथिक कंक्रीट ब्लॉक भी आते हैं, जो दूसरी टाइप, सेकंड टाइप ऑफ कंक्रीट आर्च है। मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ स्टोन और एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो सिंगल पीस ऑफ कंक्रीट होता है ये, जहां प्री कास्ट में हमने बहुत सारे कंक्रीट ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ जोड़ के जो है हमने बनाया है आर्च। यहाँ पे हम कंक्रीट ब्लॉक जो हम यूज कर रहे हैं, दिस हियर इज अ सिंगल पीस। ये लार्जर स्पैन, यानी जो चौड़ाई है दोनों एंड्स के बीच में, ये बड़ी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, उसके लिए ये सूटेबल है। खासकर ये ऑन साइट मैन्युफैक्चर होते हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार ऑन साइट एक बड़ा पीस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक बनाया जाता है आर्च की शेप में, और इनको बहुत खूबसूरती से, बहुत डिजाइन के साथ तैयार किए जा सकते हैं। और इसके लिए अच्छी लेवल ऑफ वर्कमैनशिप और टैलेंट जो है वो डिमांडेड होता है, तभी जाके हर कोई जो है वो मोनोलिथिक कंक्रीट ब्लॉक आर्च नहीं बना सकता। इट नीड्स good talented workmanship. So that's all for today's class. Today we learnt about the various types of arches on the basis of shapes and on the basis of materials. So do refer to the description box for notes on the topic. Thank you all very much.